محمد عبدالمجاہد عادل صدر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن ضلع جگتیال اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ ریاستی کانگریس حکومت بھی سابق BIS حکومت کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ صحافیوں کو اقتدار سے پہلے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، لیکن کانگریس دور حکومت میں بھی کسی وعدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ ابھی تک صحافیوں کو نئے ایگریڈیشن کارڈ جاری نہیں کیے گئے۔ آج مزید 3 ماہ کا اضافہ کرتے ہوئے احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ BIS حکومت بھی 2 سال تک صحافیوں کو نئے ایگریڈیشن کارڈز میں جاری کرنے میں ناکام تھی۔ ہر 3 ماہ کا اضافہ اور بس پاس رینیول کے نام سے فیس وصول کی جا رہی ہے۔ بس چارجز میں 1/3 کے نام پر نصف وصول کیا جا رہا ہے۔ اس جانب صحافتی تنظیموں کی توجہ حکومت سے نمائندگی کی ضرورت ہے۔ صحافیوں کو امکان نجات کی فراہمی ہے نا ہیلتھ اسکیم اور صحافیوں کے بچوں کو خانگی اسکولوں میں تعلیم پر فیس میں بھی کوئی کٹوتی نہیں کی جا رہی ہے۔ اسی زبانی خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے اور بیانات کیے گئے ہیں۔ کوروٹلا ٹاؤن میں حال ہی میں گنیش مورتی کی تیاری کے مرکز کے قریب برقی شوق سے ناگہانی طور پر فوت ہو جانے والے کوروٹلا کے SI ونود کے ارکان خاندان کو ریاستی وزیر لکشمن کے ساتھ مل کر 10 لاکھ روپے مالیت کا چیک کے سنجے رکن اسمبلی کوروٹلا نے حوالے کیا۔ ریاستی وزیر SC/ST مائنرٹی فلاح بہبود لکشمن کمار کی ریاستی وزیر کی حیثیت سے حلف برداری کے بعد پہلی مرتبہ کوروٹلا آمد پر امبیڈکرا یوجنا سنگم کے زیر اہتمام شاندار استقبال کیا گیا۔ پھول پہنائے گئے اور جواڈی نرسنگ راؤ P بھاسکر ریاستی صدر امبیڈکر یوجنا سنگم جوائنٹ ایکشن کمیٹی دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ HRPC ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن لگی پلیٹ گاڑیوں کو ہی سڑک پر چلنے کی اجازت، دیگر صورت جرمانہ اور سزا کا انتباہ۔ جگتیال ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفیسر بھدرو نائک کا انتباہ۔ انہوں نے کہا، وہیکل ایکٹ سن 1988 قانون کے مطابق ہر گاڑی کے مالک کو اپنی گاڑیوں کا وقت مقررہ پر فٹنس اور روڈ ٹیکس کی ادائیگی کے ساتھ گرین ٹیکس ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں ادا کریں گے انہیں 1 ماہ کا موقع دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گاڑیوں کے مالکین سے اس موقع سے استفادہ اٹھانے کی بھرپور اپیل کی ہے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے میڈیکل کالج ایریا ہسپتال کا آج تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایڈیشنل سیکریٹری عائشہ مسرت خانم نے دورہ کرتے ہوئے میڈیا کے لیے بیان جاری کیا۔ اس موقع پر مقامی ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS، گورنمنٹ میڈیکل کالج پرنسپل لکشمی اور دیگر ضلع عہدیدار انجینئرنگ عہدیداروں کے ساتھ مل کر تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایڈیشنل سیکریٹری عائشہ مسرت خانم کو پودا پیش کرتے استقبال کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند جگتیال کی جانب سے مسجد فاران محلہ گنج میں جناب شعیب الحق طالب امیر مقام جماعت اسلامی جگتیال کی نگرانی منعقدہ جلسہ عام کا آغاز محمد منیب الحق عامر کی تلاوت و ترجمانی کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد شیخ اسحاق علی سابق ناظم ضلع نے افتتاحی کلمات اور جلسہ عام کے انعقاد کا مقصد بیان کیا۔ اسلامی نئے سال اور ہجری کیلنڈر کے آغاز کی تاریخ سے تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوان نسل کو روشناس کروانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نئے سال کا آغاز صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں بلکہ ایمان و عمل کی تجدید کا بھی لمحہ ہے۔ نئے سال میں ہم نئے عزائم اور بیداری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس موقع پر مہمان مقرر جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، سیکریٹری رابطہ عامہ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ کمشنر پولیس کارپوریشن دلیپ کمار نے نظام آباد کے بائی پاس چوراہے پر ٹریفک سگنل کی تنصیب کے لیے عملے کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا۔ گزشتہ روز 27 جون کو RTC بس ڈپو بودھن سے آصف آباد کاغذ نگر کو نئی بس سروس شروع ہو گئی ہے۔ یہ بس دن میں دوپہر 1:15 کو بودھن اسٹینڈ سے روانہ ہوئی، جو برائے نظام آباد، جگتیال، دھرم پوری، منچریال سے ہوتے ہوئے آصف آباد پہنچی۔ اس نئی بس سروس کو بودھن بس ڈپو مینیجر نے جھنڈی بتا کر روانہ کیا۔ جمعیت علماء ہند شاخ بودھن کے پریس نوٹ کے مطابق بودھن میں جمعیت کی ممبر سازی مہم زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ ملت اسلامیہ کی دینی قیادت، ملی مسائل کے حل، آئینی تحفظات کے دفاع اور امت کے اتحاد کو فروغ دینے کے مقصد سے جمعیت کی جانب سے ملکی سطح پر ممبر سازی جاری ہے۔ اس سلسلے میں بروز جمعہ مدینہ مسجد انیسہ نگر بودھن میں جمعیت کے زیر اہتمام ممبر سازی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جبکہ سمیع اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی نگرانی میں رکنیت سازی انجام دی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ، جنہیں گزشتہ ہفتے ہی متحدہ ضلع عادل آباد کا انچارج وزیر بنایا گیا ہے، نرمل کو پہلی مرتبہ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔
सदर जिले कांग्रेस के श्री हरियाव की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने रैली निकाली और मंचिया चौराहे पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का खैर मकदम करते हुए उन्हें मोटरसाइकिल रैली के जरिए मिनी टैंक बैंड पर, जहां अंबेडकर के मुजस्सिमे पर वजीर मौसूफ ने फूल चढ़ाए, उनके साथ मंचिया चौराहे पर शिवाजी चौक पर शिवाजी के मुजस्सिमे, गांधी और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाने के बाद वजीर मौसूफ ने निर्मल कलेक्ट्रेट मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस रैली में वजीर मौसूफ मंचिया चौराहे से ही खुली जीप में सवार हो गए, जिसके के श्रीहव ए इंदिरा करण रेड्डी, साबिक वजीर जंगलात, साबिक मरकजी वजीर एस वेणुगोपालचारी, खानापुर रुकन असेंबली मधुल के साबिक रुकन असेंबली नारायण राव पटेल सवार थे, जबकि मोटरसाइकिल रैली में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन मोहम्मद ज़ीशान अली, मजहर खान, सैयद कलीम सबा, मोइन, गाजल रवि और दूसरे भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से रामकृष्ण संविधान बचाओ कमेटी के रुकन की हैसियत से माजिद खान और CH राम भोपाल को PCC जनरल सेक्रेटरी से मुखर किए जाने पर सीनियर कांग्रेसी कायद तर्जुमान जिले कांग्रेस निजामाबाद मोहम्मद मसूद अहमद एजाज की जानिब से जबरदस्त तहनीत पेश की गई। उनकी ऑफिस पर मुनक्किदा तकरीब में तीनों कायदीन को तहनीत पेश की गई। कई कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत करके मुबारकबादी भी दी। MLC तेलंगाना जागृति सदर कविता ने आज तेलंगाना जागृति की सदर और BIS के MLC कविता से उनके ख़यामगाह पर MLC कविता से PI के राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने मुलाकात की। ये मुलाकात आज सुबह मंजाइज में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर अमल में आई, जिसके दौरान मुख्तलिफ सकाफती, समाजी, फलाही, अदबी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। नाविया गर्ल्स जूनियर कॉलेज जगतियाल में आशरम महीने की आमद पर गोरंटाकू मेहंदी फेस्टिवल का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। लड़कियां इस आशरम महीने में अपने हाथों पर गोरंटाकू यानी मेहंदी लगाने का रस्म रखती है। हमारे तेलंगाना की तहजीब है जो पहले से चले आ रही है। कॉलेज इंतजामिया श्री पदा नरेश और प्रिंसिपल गेलापल्ली ईश्वर कुमार ने तलबा को इसके बारे में मजीद तफसीलात भी बतलाई। निजामाबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने सख्त तई निगरानी का भी ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला कल 29 जून को निजामाबाद आएंगे, जहां वो हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह, आनजहानी DC श्रीनिवास के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई और किसानों के जलसे से भी खिताब करेंगे। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के मुताबिक ऑक्टोपस, ग्रेहॉर्न्स, स्नाइपर टीमें, BT स्क्वाड, स्पेशल फोर्सेज और डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है। तक़रीब के तमाम मुकामात, होटल, सड़कें और ताफ के इलाकों में सख्त जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि वो अजनबी अफराद पर नजर रखें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी के बारे में पुलिस को इत्तला दी जाए। हल्दी बोर्ड के इफ्तिताह पर कविता ने तंज किया और बार बार इफ्तिताह को संजीदगी का फकदान करार दिया। मरकजी और रियासती हुकूमतों पर उन्होंने शदीद तनकीद की। तेलंगाना जागृति सदर MLC कविता ने कहा, निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का पहले ही 2 बार इफ्तिताह हो गया है, अब अमित शाह 30 बार इफ्तिताह कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बोर्ड को कानूनी हैसियत दी जाए, हल्दी को फी कुंटल 15,000 रुपये इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। कविता ने कहा, अगर मरकजी हुकूमत वाकई संजीदा होती तो बजट में फंड मख्तस करती थी। कविता ने कांग्रेस पर भी सख्त तनकीद की। रचाकुंडा में खवातीन को हिरासत में परेशान करने के इल्जाम में पुलिस की शी टीम्स ने 141 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिसमें 42 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। इन तमाम को हिरासत में लिए जाने के बाद सीनियर माहिरीन नफ्सियात ने उनके वालिदैन और लड़कों की काउंसलिंग की। वादे रहे कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में 15 दिनों के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में आईं। बताया जाता है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए, साथ ही रास्त तौर पर मेट्रो ट्रेनों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप्स, काम के मुकामात और कॉलेजेस से जुमला 163 शिकायत शी टीम्स को मौसूल हुई थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया उनके लिए तरबियत याफ्ता काउंसलर्स और पेशावराना माहिरीन नफ्सियात की जानिब से की जा रही काउंसलिंग सेशन में शिरकत लाजमी करार दी गई है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मरकजी हुकूमत बिहार में खुफिया तौर पर NRC पर अमल आवरी कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन बिहार में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC पर खुफिया तौर पर अमल आवरी कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो रहनुमायाना खतूत बनाए गए हैं वो इम्तियाज़ पर मबनी हैं, जिनमें सदाकतनामा पैदाइश या पैदाइश से मुतालिक दस्तावेज़ात तलब की जा रही हैं, जिसका मकसद एक बड़ी तादाद में राय दहिंदों को हक़ राय दही से महरूम करना है। ख़ास तौर पर
पर गरीब और महरूम तबका से उनका हक राय दही छीनना है। इस ज़िम्मन में असदुद्दीन अवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन रियासत बिहार में पिछले दरवाजे से एनआरसी पर अमलावरी कर रहा है। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज करवाने के कहा तमाम अफराद को ऐसी दस्तावेज़ात पेश करनी होगी जिसमें साबित हो कि वो कहाँ और कब पैदा हुए। यहाँ तक कि उन्हें दस्तावेज़ात के ज़रिए ये भी बताना होगा कि उनके वालिदैन की पैदाइश कहाँ हुई। इस तरह की हरकत सीमांचल जैसे हमेशा सैलाब में घिरे इलाके के लोगों के लिए एक जालिमाना मजाक है। एक तरफ रियासत तेलंगाना में बीजेपी सियासी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पार्टी की रियासती यूनिट में शदीद दाखिली इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। राजा सिंह और दीगर बीजेपी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ सफा रहे हैं। गोशा महल के एमएलए ने रियासती सदर बीजेपी व मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। ऐसे में खबर आई है कि रियासती बीजेपी के नए सदर का इंतखाब अगले माह में होगा और इस ज़िम्मन में कल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। बावसूख ज़राए का कहना है कि ई राजेंद्र रियासती बीजेपी के अगले सदर हो सकते हैं। कांटा लगा एल्बम से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली शिफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। इस 42 साल अदाकारा व मॉडल का जुमे को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दरमियानी शब उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके शौहर त्यागी ने उन्हें मुंबई के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने शिफाली को मुर्दा करार दिया। शोबिस दुनिया में शिफाली की मौत से गम की लहर दौड़ गई है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके के रहने वालों और शहरी तंजीमों के नुमाइंदों और कंटोनमेंट विकास मंच ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि बेगमपेट एयरपोर्ट को दंडीगल एयरपोर्ट या एयरफोर्स एकेडमी मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे सेफ्टी के मसाइल और शहरियों को खलल पड़ रहा है। सीबीएम के अहदेदारों का कहना है कि बेगमपेट एयरपोर्ट गुंजान आबादी के दरमियान में वाक़ है और आबादी के दरमियान किसी एयरपोर्ट का होना खतरे से खाली नहीं है। इन लोगों का ये भी कहना था कि शमशाबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद बेगमपेट एयरपोर्ट की बरकरारी गैर मुनसिफाना है। कोलकाता पुलिस ने हफ्ते को कोलकाता लॉ कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी लॉ कॉलेज की साल अव्वल में ज़ेर तालीम तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के ज़िम्मन में अमल में आई। इस तरह इस केस में अब तक 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि तालिबा की मुबैना तौर पर इसी हफ्ते 3 अफराद ने इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी, जिसमें एक साबिक़ तालिब इल्म भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक 24 साल तालिबा एक टेस्ट के लिए दरख्वास्त फॉर्म पुर करने गई थी। उसकी तकमील के बावजूद उसे यूनियन रूम में रोक के रखा गया। पुलिस के मुताबिक इस्मत रेज़ी का यह वाक़या सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में पेश आया था। पुलिस का दावा है कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी अंजाम देने से कासिर रहा। आपको बता दें कि 25 जून की शाम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में ये शर्मनाक वाक़या पेश आया था। अपनी अजीब व गरीब हरकतों और बयानात व दावों के लिए दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बने रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक अजीब बयान दिया है, जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई की ज़िंदगी बचाई है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि इस एहसान के लिए आयतुल्लाह अली खामेनेई ने उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ट्रंप का ये भी कहना था कि अली खामेनेई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि इसराइल को ईरान ने शिकस्त दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर को मालूम है कि ये झूठ है और एक ईमानदार शख्सियत के लिए झूठ कहना मुनासिब नहीं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वो अच्छी तरह जानते थे कि अली खामेनेई कहाँ पनाह लिए हुए थे, उसके बावजूद मैंने उन्हें बचाया। ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनेई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये धमकी भी दी कि अगर ईरान जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करता है तो वो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना ईरान के लिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मैं ईरान पर से पाबंदियां हटाने पर काम कर रहा था, लेकिन अली खामेनेई के बयानात ने मेरा काम फ़ौरन रोक दिया।